है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े भाग्य जो आप बने हैं हम सबके मेहमान, बड़े भाग्य जो आप बने हैं हम सबके मेहमान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान।
Stretch your hands, raise your heels. एड़ियों को उठाइए. Bring your heels down. Proper hand bring them down. खोते विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को सुप्रभात। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का परिचय आदेश आदित्य द्वारा, परिचय स्नेहा द्वारा, छात्र प्रतिज्ञा कौशिकी द्वारा, सुविचार अनिमेश द्वारा, समाचार अभिमन्यु एवं श्रुति द्वारा, नया शब्द सृंजय द्वारा, विशेष कार्यक्रम 11वीं स एवं बाल वाटिका द्वारा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान, प्रतिज्ञा। India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall classmates and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being, उत्तिमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात हम जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य की प्रतीक्षा मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कार्य की सफलता और सिद्धि के लिए परिश्रम अति आवश्यक होता है। उदाहरण जैसे कि शेर शक्तिमान होता है लेकिन उसे अपने भोजन या आहार के लिए परिश्रम करना पड़ता है और सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। अहम पुनः वदामि उत्तिमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। धन्यवाद। भवतः दिनं मंगलं च शुभं भूयात्। समाचार Good morning everyone. Today I, Abhimanyu, I Shruti. we are going to present today's news headlines. First of all, some international news. UNESCO has officially added 26 new sites to its World Heritage List, including ancient places in Germany, stone monuments in France, and Gola Devi rainforest in Sierra Leone. This move aims to preserve global culture and nature for future generations. The UN has declared 2025 as the International Year of Glaciers Preservation, focusing on protecting glaciers and raising awareness about climate change. A global forum
on sustainable education was held recently where students and educators discussed how colleges can support climate action, gender equality, and health through real-world learning. National news. Vice President Mr. Jagdeep Dhankar resigns due to health reasons. Prime Minister Modi to visit United Kingdoms and Maldives from 23rd July to 26th July. ISRO to launch NISA satellite with NASA on July 30. Prime Minister Modi inaugurates India's first ever AI-generated smart highway in Gujarat. Now some local news. On the account of Shravan month, Kamadiyas took part in the Kamad procession and went to the holy river Narmada and fetched water from there. The procession successfully passed from Gauri Ghat to Khamaria. Today, at PM Shri Kendra Vidyalaya CMM, annual academic inspection is being conducted by the honorable members of panel inspecting team headed by Honorable Assistant Commissioner Dr. Saroj Dabas. Sports news. Koneru Hampi creates history, becomes first Indian woman ever to reach the 5 Women's World Cup semi-finals. Long jumper Sri Shankar wins gold in Portugal athletics meet. India to hold Chess World Cup this year. Mukesh, Carlsen and 204 others to compete. Now some good news. Daniel Maradona, an auto driver in Bengaluru who was mocked for his poor English, has earned a master's degree. He taught himself by reading English newspaper every day for 10 years and has turned his auto into a moving library. Students from 2 schools in Meghalaya harvested fresh vegetables after their classes for midday meals. Now, more than 80% of schools grow vegetables for their midday meals through student-led gardens. Today's temperature. The maximum temperature would hover around 32 degrees Celsius while the minimum is predicted to be 23 degrees Celsius. Thank you and have a great day ahead. नया सर सर्वेभ्य नमो नमः. आदर्श शब्द वंदन, अर्थ अभिनंदन. मीनिंग इन इंग्लिश वेलकम. वाक्य प्रयोग वयम आगतानां सर्वेषां अतिथिभ्यः हृदयेन वंदनं कुर्मः. पुनः वदामि वंदनम्. अर्थ अभिनंदन. धन्यवाद. भवतः दिनं मंगलं भूयात्. विशेष कार्यक्रम Yes, I noticed that too. Hey, what you two are talking about without me? Hi, we were just talking about the flag. Oh, do you know? Today is the National Flag Adoption Day. No, what's that? Yeah, tell me too. Sure. So, on this day in the year 1947, our current national flag was officially adopted. But let me tell you, this wasn't the first flag that we ever had. Yes. You know, we Indians have had more flag changes that some people change their hairstyle. So, the first Indian flag, also known as the Calcutta flag, was hoisted in the year 1906. It had colors like green, yellow and red with 8 lotuses representing the 8 provinces of British India. It also had Indian symbols like a crescent moon and a sun representing Muslims and Hindus respectively. It must have looked so vibrant, but how it changes later on? Actually, in 1907, the Berlin Committee flag came forward, which was also known as the Bhikaji Cama's flag. It was the flag with colors like red, yellow and green, representing Hinduism, bravery and Islam. It also had the same symbols as the 1906 flag. Oh, that's something worthwhile to note. Now moving ahead, the flag of 1917 was the Home Rule League flag. It was unique with 5 red and 4 green stripes arranged alternatively. There was a Union Jack symbol on the upper left side symbolizing Dominion status under British rule. But there were also Indian symbols like a crescent moon, a 7-sided star and 7 individual stars. Imagine Union Jack on the top with Indian elements like stars. It sounds like wearing a hoodie on a sherwani. So, in the year 1921, Gandhiji entered the scene with a charkha and a brand new flag with colors like red, green and white, representing Hindus, Islam and peace respectively. It also had a charkha in the center. But this wasn't just about religion. It was about self-reliance, dignity and unity. So, the charkha became a powerful symbol. It showed how India could become independent, not just politically,
but economically too. Wow! Now, the direct precursor of our current flag, the 1931 flag, came forward. It was a flag with colors like saffron, white and green. It also had a chakra in the center. It was the first time in the Indian history when a flag was officially recognized by the Indian National Congress. Sounds amazing. And respectfully, are we still looking at a flag? No, this one was the last flag before our current flag came into light. The Constituent Assembly sat down, debated, and finally, on the 22nd July of 1947, our current flag was adopted. It was designed by Bengali Venkaya. It had saffron for courage, white for peace, and green for prosperity, and the Ashok Chakra in the center with 24 spokes showing diligence for 24 hours and 24 virtues a person is expected to have. So, the flag we hoist today is not just a piece of fabric. Every version of a flag stood a part of a freedom struggle. Every silent prayer, every jail cell, and every protest stitched together. Our ancestors did their deeds, and now it's our time to carry their legacy forward. The flags will now retreat, but they should not leave your hearts. Jai Hind! विशेष कार्यक्रम Carrot, carrot, cabbage, cabbage, broccoli, broccoli. 1, 2, 3. Let's chop some carrots, carrots. Na na na. Let's chop some cabbage, cabbage. Na
and to mentor us. I, on behalf of Principal Sir, all staff members and students, extend a very heartfelt welcome to Honorable AC Madam and all esteemed team members. Madam, I am sure that we will learn a great deal under your able guidance and will be motivated to enhance our capabilities to do even better. With the beginning, I would now request Honorable Principal Sir to accord green welcome to our distinguished guests. Principal Sir, please. सत्यपाल सिंह जी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय लखनऊ। सम्माननीय श्री अमित श्रीवास्तव जी, प्राचार्य पीएम श्री केवी ओएफ खमरिया, सम्माननीय श्री मनीष गुप्ता सर, प्राचार्य पीएम श्री सागर नंबर 1, आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह सर, प्राचार्य पीएम श्री केवी लखनऊ, श्री मुकेश भदौरिया सर, प्राचार्य जयंत कोलियारी, मैडम निश्मा HM GCF नंबर 2,
आप सभी का विद्यालय प्रांगण में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सभी के अनुभव और केंद्रीय विद्यालय में इस लंबी यात्रा का निश्चित रूप से आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उससे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सहायक आयुक्त महोदया के 10वीं और 12वीं में 100% परिणाम रहे हैं और साथ ही जो गुणवत्ता सूचकांक रहा है, पीआई रहा है, वो भी निश्चित रूप से जो हमारे केवीएस नेशनल पीआई है और रीजनल पीआई है उससे भी ऊपर ही रहा है। ये इस विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि हमारे साइंस की छात्रा ने इस वर्ष रीजनल लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है 96.6% के साथ। साथ ही हमारे विद्यालय से 2 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें से एक बच्चे ने जी एडवांस के माध्यम से चयनित होकर के उसको आज आईआईटी कानपुर में स्थान मिला है और एक बच्चे का नीट के माध्यम से चयन हुआ है, जिसे लगभग 6000 से कम रैंक प्राप्त हुई है। 17 लाख बच्चे लगभग अपीयर हुए हैं, उसमें से उस बच्ची ने 6000 से भी उसकी कम AIR रही है और उसने अपने कॉलेज के लिए इंदौर को चुना है, MGM कॉलेज को। मैडम,
वाइस प्रिंसिपल मैडम और आपके प्राचार्य, आप सभी ने मेरी इंस्पेक्शन टीम और मेरा जो स्वागत किया, जिसमें आप सब ने पार्टिसिपेट किया, वो हमारे लिए बहुत ही विस्मरणीय रहेगा। मेरे इंस्पेक्शन टीम मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जैसा आप जानते हैं कि आज हमारा एकेडमिक इंस्पेक्शन है। हमारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्कूल की जिम्मेदारी मेरी भी है। आपके स्कूल में कुछ अच्छा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही कुछ अच्छा किया है, और यदि कोई परेशानी होती तो ऐसा लगता है कि मुझे भी परेशानी है, क्योंकि ये स्कूल लगभग 2 साल से मेरे पास है। 2023 से अब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी और आगे बढ़ना बाकी है। आप सबके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से दोनों बच्चे जिनका जेईई और नीट में सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः हम सबकी ओर से, और बहुत सारा आशीर्वाद कि वो जीवन में सफल बने, प्रेरणा स्रोत बने। जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सब बिल्कुल उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं। आपका लक्ष्य अलग हो सकता है, आप अपना लक्ष्य तय करें। अगर अभी भी लक्ष्य विहीन है, क्लास 6वीं से लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इस तरह से हम प्लान करते हैं। और 9वीं तक आते आते हमारा लक्ष्य लगभग एक नैरो डाउन होता है कि अब ये 4 ऑप्शन बचे हैं जिसमें से मैं करने की काबिलियत रखती हूँ। देखो, 2 तरह के लक्ष्य होते हैं। एक वो होता है कि हमें क्या करना है, और एक ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए, मतलब क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं, तो लक्ष्य हासिल हो जाता है। तो क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चे, यदि किसी ने अभी भी अपना लक्ष्य तय नहीं किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो कहीं आप चूक ना कर जाएं। आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें, कंफ्यूजन में मत रहें। आप दूसरों को देख सकते हैं, आपके लक्ष्य में 10 ऑप्शन हो सकते हैं कि मुझे ये करना है, कोई बात नहीं, उन्हें आप लिख लीजिए और उसके साथ आप लिखें कि मैं ये क्यों कर सकता, मेरे में ऐसी क्या खास बात है कि मैं कर सकता। अब आपको लग रहा हो कि मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं पुलिस बन जाऊं, मैं एसपी बनूं, लेकिन आपको उसमें ढूंढना है कि उस रोल में अपने आप को सोच के देखना है कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है और मैं अपने उन गुणों को कैसे इंप्रूव करूं। तो क्लास 9 ऑनवर्ड के लिए एक टास्क है ये। आप लोग बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको लक्ष्य आज से ही निर्धारित करना है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। छोटे बच्चे जो उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बाल वाटिका, हम देख रहे थे कि बाल वाटिका के बच्चे जब स्टेज पे आते हैं हम सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, उससे पहले ही हमारे सबके चेहरे पे, आपके और हम सबके, एक खुशी आती है, क्योंकि वो उन बच्चों का, इतने छोटे बच्चे जो घर में इतना चलबुले रहते हैं, वो एक साथ मंच पे आए हैं और म्यूजिक के साथ में अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। यहाँ से आपका सफर भी शुरू हुआ कभी, और अब आप 12वीं तक पहुंचे। हमारा भी सबका सफर वहीं से शुरू हुआ और हम बड़े हो गए। लक्ष्य निर्धारित सबसे इम्पोर्टेंट काम, और जो आपके प्राचार्य जी ने बताया क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 10 का रिजल्ट, मैं चाहूंगी कि ऐसे ही अगली बार जब हम आए तो कक्षा बाल वाटिका से लेके 12वीं तक की उपलब्धियां यहाँ से बताई जाए। बाल वाटिका की अलग उपलब्धियां होंगी, प्राइमरी की अलग उपलब्धियां होंगी, 6वीं से 8वीं तक की भी उपलब्धियां हैं। ऐसे आप सेक्शन वाइज अगर हम उपलब्धियां करें तो सबका यहाँ से मोरल हाई रहेगा और सबको अच्छा लगेगा कि हमें यहाँ से रिकॉग्निशन मिला है। उपलब्धियां बहुत हैं। महीने में एक बार अगर आप अपनी ही उपलब्धियों को यहाँ से बच्चों के माध्यम से बताएं कि हमारे
स्कूल की ये उपलब्धियां अभी इस मंथ में हुई हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे। और ये सिर्फ साल में एक दिन करने का टाइम नहीं है, एवरी मंथ अगर आप इसको प्लान करते हैं तो आप देखेंगे कि बढ़िया। कुछ आपकी उपलब्धियां स्कूल लेवल की होती हैं, कुछ उपलब्धियां आपकी सर्टिफिकेट के साथ होती है, कुछ उपलब्धियां आपकी बिना सर्टिफिकेट भी होती है। आपने किसी की मदद करी, वहां कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, लेकिन एक उपलब्धि है कि आपने अपने आप में समाज के प्रति कुछ ऐसा कार्य किया जिसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो उपलब्धियां कौन सी बतानी है ये आप खुद और डिसाइड कर सकते हैं, ये मेरा एक सजेशन है। मेरे इंस्पेक्शन टीम मेंबर्स सब अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ जबलपुर से और बाहर से भी। ये एक मिक्स्ड टीम है। हम दिन भर आपका ये देखेंगे कि आपने अब तक अपना बेस्ट क्या किया। देखो ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है आज आपका। अगर आपका कोई होमवर्क इनकम्प्लीट हुआ तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं इंस्पेक्शन टीम मेंबर्स को यहीं से कह रही हूँ, ये एक रूटीन है, ये कोई आज टेस्ट नहीं है, ये एक रूटीन है। यहाँ हम ये देखने आते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कर सकते हैं, उसको जांचने आते हैं कि कितना अच्छा आप कर सकते हैं और अभी आप क्या अच्छा और करने वाले हैं, ये भी समझने के लिए आते हैं। तो सभी बच्चे और टीचर्स आप अपना बेस्ट बताइएगा। आपने अब तक अप्रैल से जितना भी कार्य करवाया है उसका कोई सैंपल्स आप दे सकते हैं, जिसमें आपने कोई प्रोजेक्ट बनवाया है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि आपको उस दिन बच्चे भी बताना रह जाता है कि हमने ये काम किया। जब भी हम आपसे बात करें आपको अपना अप्रैल से अब तक का इम्प्रूवमेंट पे ही फोकस करना है और आगे आप क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आज के लिए और आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके प्राचार्य ने यहाँ से जितनी भी आपकी उपलब्धियां बताई उसके लिए आप सबको एक बार बधाई, पूरी टीम को बधाई। किसी एक की उपलब्धि नहीं होती है, ये एक टीम वर्क होता है और इस उपलब्धि की कड़ी में और कड़ियां जुड़े, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। धन्यवाद।